Very warm welcome after a very long break, children. As you have cleared 10th, heartily congratulations to you all. And further, you can just do hard work for 11th as well as 12th science, children. So when we talked about 11th science, till 10th class, you have learned chemistry as a combined subject. So you have only few chapters. Now the particular whole scenario changed from the 3 chapters to 13 chapters. So children, you have to do hard work. You have to just go through what you have learned day by day. You don't keep that we are doing one tomorrow, we are doing one tomorrow. You are not getting time at the end. So whatever you have learned, that what you have to revise on the same day. अभी तक हमने जो भी केमिस्ट्री पढ़ी, जिसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, तो that is all about the very small portion. Okay, entire world where we are not going each and every place, but we can have information about each and every place in same manner. When we talk about chemistry, is a very large branch with many more branches under it. So when we talked about this particular part 1 as well as part 2, अभी तक हमने पूरी होल साइंस बुक में केमिस्ट्री के 5 chapters for 10th standard, 4 chapters for class 9. That what we have learned. Now you have to learn 13 to 14 chapters, children. Some of the chapters are omitted by the CBSE as well. Some of the topics are going to be there, removed out from the particular chapters. So children, whenever we are starting, very first we are doing the particular first thing, that is we see that how much particular topic you have to learn about. So children, when we are starting, before starting मैं कहना चाहूँगी कि अगर नैया में बैठे हो तो नैया को पार करना ही पड़ेगा. एक बार साइंस में आ गए हो तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. हार्डवर्क नहीं करोगे तो चलेगा नहीं. आज मैंने कर लिया, कल कर लूँगी या तो कल कर लूँगा, तो ऐसे केमिस्ट्री होगा नहीं. सो यू हैव टू डू द हार्डवर्क एज वेल एज यू हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट द सब्जेक्ट एज इट इज़ नॉट हार्ड सब्जेक्ट. Even I said that it is a very fun, full subject. You can just learn with the fun. But if you are just taking as a particular part that okay we'll do, so you cannot achieve more marks. So when we talked about the chapter number 1, so here very first that is about the general introduction of this chapter, as well the chemistry. What is chemistry? What are the branches of chemistry that we are going to learn? Then some of the topics are there included and some of the topics are going to be excluded. So whatever chapter, whatever the topics I have written, that only we have to learn about. Rest all the particular topics in your textbook, you have to make it cancel, children. Though it is there in the textbook, it is going to be excluded, not by me, not by the principal, not by the management, it is excluded by the CBSE. So here, atomic mass and molecular mass we will learn about. Secondly, mole concept which we have learned in class 9, children, if you have very sharpened memory. Then molar mass, this also we have learned in 9th class. Percentage composition is the new one for you people. Empirical formula as well, molecular formula is also the new one for you people. And chemical reaction that you have learned in 10th class, how to balance it, that you have learned. Stoichiometry is nothing but it is related with the number of elements as well as its concentration as well as its calculation. So that is only what we have to learn in chapter number 1. So children, when we talked about this particular chapter number 1, that is basic concept of the chemistry. क्या है केमिस्ट्री? हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा केमिस्ट्री में? तो हमने एटम के बारे में पढ़ा है मैडम, हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है मैडम, हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने देन आफ्टर वी हैव जस्ट स्टार्ट टू फॉर्म द फॉर्मूला एंड देन वी जस्ट स्टार्ट टू राइट द वर्ड इक्वेशन, देन केमिकल इक्वेशन. यू सी इट इज अ चेन. बट बिफोर दैट, फ्रॉम वेयर इट कम्स, इट इज देयर फ्रॉम द नेचर. वो सारे जो भी हमें मिले हैं गॉड गिफ्टेड है या तो मैनमेड है, तो सारे नेचर में है, या तो नेचर से मिले हैं या तो हमने खुद बनाए हैं. तो सारे ऐसे ऑब्जेक्ट को हमने क्लास 9 में पढ़ा है मैटर. ठीक है.
तो whatever that is there, you can see some of the particular revised topics which are done in either class 9th or 10th in this chapter. Before that, I will give a very small introduction about the chemistry as well as this chapter. So kindly copy it down. These are the particular topics which we have to learn. Rest all the particular topics are cancelled. This only we have to learn about. Rest all whatever the laws are there, whatever the particular numbers are there, particular notification numbers, as well as the numericals related. Find out the particular figures, significant figures. That is all going to be removed out from the particular chapter. From atomic mass we are going to start till the empirical formula as well as stoichiometric of that particular. So this is all about what we have to learn. Now let me talk about the introduction. क्या है इसका introduction? So chemistry क्या है? तो मैडम वो रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी देख लो, सबसे पहले कहीं और ना देखो, नेचर में देखो कलर है, tree are there whenever we just looking at observe at the leaves, so they are of green color. तो हमने बायोलॉजी में वो क्लोरोफिल से पढ़ा, बट उससे भी आगे जाओ तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे हम बायो रिलेटेड और केमिस्ट्री तो उसे बोलेंगे बायो केमिस्ट्री. तो मैडम कैसे हुआ? तो मैग्नीशियम हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है, वो मेटल है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, या तो हमारी बॉडी फर्स्ट जस्ट चॉक द बड़ा टीथ कैल्शियम रखते हैं, ब्लड आयरन रखता है, स्टमक एसिड रखता है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं पे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को देख रहे हैं. तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज डील्स विद द composition, structure and properties of matter. क्या है डेफिनेशन? तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा है बेटा कि इट इज द वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट विच कंटेन विच हैविंग ऑक्यूपाइंग द मास एज वेल एज द वॉल्यूम. तो उसे हम मास बोलेंगे. मैं खुद खड़ी हूँ तो मैं एक मैटर हूँ, लिविंग मैटर हूँ. ट्री लिविंग मैटर है. अगर हम बेंच की बात करें, बोर्ड की बात करें, नॉन लिविंग मैटर. तो उसकी जो भी कंपोजिशन, उसकी जो भी हिस्ट्री है, कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, तो उसे डीपली स्टडी करना है तो केमिस्ट्री के साथ हमें डील करना पड़ेगा. और अगर उसे डीपली स्टडी करना है तो और फर्दर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में इट्स नॉट अबाउट ओनली यू जस्ट स्टडी दिस 2 books एंड यू आर जस्ट हैविंग अ जॉब. नो, दैट ऑल्सो हैविंग अ फर्दर क्लासिफिकेशन ब्रांच है केमिस्ट्री की. सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको याद हो तो आपने स्टैंडर्ड 10 में देखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत सारे कंपाउंड देखे. इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, बोथ आर सेम, ठीक है. तो दैट ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो इंडिकेटिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी जो ब्रांच से होती है वो केमिस्ट्री को बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकेंडली ऑर्गेनिक, कार्बन के अलावा जो भी सारी स्टडी कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड की, तो उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन के अलावा जो भी मिनरल अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं उसे अगर हमें स्टडी करना है तो जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो ब्रांच को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन फिजिकल केमिस्ट्री. हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है प्रिंसिपल. क्या है डाल्टन का लॉ की मैटर कैन नॉट बी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. ऑल लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. तो जो भी स्टडी विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना, तो उसे बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री. तो कहीं ना कहीं वो लॉज और थियोरिकल एक्सप्लेनेशन देता है केमिस्ट्री के बारे में, तो वो ब्रांच को हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विल टॉक अबाउट. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दैट इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल प्रोसेस,
ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम 11th क्लास में देखेंगे टाइट्रेशन है, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना। तो ऐसे वेरियस इंडस्ट्री और दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम, सो दे आर जस्ट यूजिंग द apparatus, very fast apparatus to measuring out all this। तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, कोई भी सब्सटेंस क्वालिटेटिवली कैसा है, क्वांटिटेटिवली कैसा है। जैसे इंसान खुद कैसा है वो खुद नहीं पहचान सकता, उसे या तो आईना बता सकता है या तो उसका कोई भी नज़दीकी बता सकता है कि तुम में ये कमी है, ठीक है। तो वो उसका हुआ क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी में अगर बात करते हैं इंसान की, तो हम कितने काम आते हैं किसको। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस को ले लो, वो क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिव दैट मीन्स कि वो कौन से कंपोनेंट से बना है। वो सोडियम से बना है, वो क्लोरीन से बना है, वो कार्बन से बना है, वो ऑक्सीजन से बना है। एंड क्वांटिटेटिवली दैट मीन्स कि वो कितने अमाउंट ऑफ सोडियम, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन से बना है। तो वो स्टडी को बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट जस्ट गिव आइडिया अबाउट बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। बायोकेमिस्ट्री भी हमने बात की है पर्टिकुलर क्लोरोफिल के बारे में। तो it deals with chemical changes going into the particular bodies of living organism, plants as well as animals। फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, तो दैट आर इंक्लूडेड विद द ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट इज रिलेटेड विद द टर्म न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मीनिंग होता है टूटना, बहुत ब्लास्ट करके उसे तोड़ देना, न्यूक्लियर फिजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा। दैट इज ऑल यू हैव टू लर्न इन द फर्दर हायर स्टडीज, might be in the masters, in the bachelor we have to only select one branch from this, and then in masters you have to learn deeply about this. If you are selecting this, then you have to just learn deeply about nuclear chemistry. If you are selecting biochemistry, you have to deeply learn about this. So this is the very common introduction about the chemistry। chemistry क्या है, chemistry कैसे पढ़े। मैडम chemistry बहुत hard लग रहा है, तो सबसे पहले हमें खुद को अंदर से देखना है कि इफ़ आई एम कैपेबल देन आई कैन डू, इफ़ आई हैव टेकन देन आई हैव टू डू। यस, सो चिल्ड्रन दैट इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। कहीं पे भी आप जाओ तो आपको केमिस्ट्री मिलेगी। ड्रग्स, ऑल द मेडिसिन्स, कफ सिरप ले लो, एनी काइंड ऑफ पेंट, एनी काइंड ऑफ डाइज, फाइबर्स, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का 9 नॉट मोर देन वी कैन से दैट, बट कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट, स्मॉल परसेंटेज केमिस्ट्री का उसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो केमिस्ट्री इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न अबाउट। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर branch of chemistry as well as about the chapters, chapter number 1, in which whatever the topic we are going to start from tomorrow. So in the next particular, from the next class we are starting with the explanation part. Children, we don't have the time, so we have to rust off. That doesn't mean कि I am just speaking and you are not getting anything. We are going smoothly, but we are not wasting our time looking here and there. We just go through the topic concerned with that topic. If you have any doubt, you have the helpline number, so you can just ask the various queries on it. So please, that helpline number is there, going to given soon by the principal sir. So you don't have to bother about all your queries. You can directly comment also. So that is all about today. From the next particular class, we are starting with chapter number 1. Thank you.